Question number 1. Which of the following is not a subordinate law given in trial and error? Options are law of multiple response, law of attitude, law of exercise, law of response by analogy. निम्नांकित में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौण नियम नहीं है? ऑप्शंस आर बहु अनुक्रिया का नियम, अभिवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तार्किक अनुक्रिया का नियम. So correct answer is option number 3rd, law of exercise. अभ्यास का नियम, law of exercise is the right answer. Question number 2. According to Piaget, the age range of the sub-stage mental representation of the sensory motor stage is. Options are birth to 1 month, 4 to 8 months, 8 to 12 months, 18 months to 2 years. पियाजे के अनुसार संवेदीगामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु है. ऑप्शंस आर जन्म से 1 माह, 4 से 8 माह, 8 से 12 माह, 18 माह से 2 वर्ष. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, 18 months to 2 years. 18 माह से 2 वर्ष. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. Question number 3rd. The psychologist who tried to develop a learning theory using principles of topology, a branch of mathematics, is Kurt Lewin, Sigmund Freud, William James Skinner. मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया वह है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, Kurt Lewin. Question number 4. Which of the following is not an example of children with special needs as per RPWD Act 2016? Options are acid attack victims, cerebral palsy, children with visual impairment, none of these. RPWD Act 2016 के अनुसार निम्नांकित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस आर एसिड हमले के शिकार, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, दृष्टिबाधित बालक, इनमें से कोई नहीं. So correct answer is option 4, none of these. इनमें से कोई नहीं. Question number 5. Testing used during instruction to aid in planning and diagnosis is known as. Options are formative assessment, summative assessment, normative assessment, none of these. परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है कहलाता है. ऑप्शंस आर रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मानक मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन. The teacher said Rekha that she is not allowed to participate in game period as she has not completed her homework. It is an example of negative reinforcement, punishment, positive reinforcement, tangible reward. शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य नहीं पूरा किया है, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है. यह उदाहरण है नकारात्मक पुनर्बलन का, दंड का, सकारात्मक पुनर्बलन का, स्पर्शनीय पुरस्कार का. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, पनिशमेंट, दंड का. पनिशमेंट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. द एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्स एट सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, नन ऑफ द अबव. वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है
ऑप्शंस आर संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन थर्ड, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज द राइट आंसर। Question number 8. Which type of teaching material is most effective for a child with visual impairment? Options are video based, visual material, tactile based, none of these. दृष्टि बाधित बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होगी? ऑप्शंस आर वीडियो आधारित, दृश्य सामग्री, स्पर्शात्मक, इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, tactile based, स्पर्शात्मक। Question number 9. Modeling is the concept given by Albert Bandura, J.B. Watson, Freud, Vygotsky. मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है। सो आंसर इज ऑप्शन 1, एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। Modeling is the concept given by Albert Bandura. Question number 10. Which of the following has viewed the child as tabula rasa blank state? Freud, Piaget, Skinner, John Locke. निम्नांकित में से किसने बच्चे को टेबुला रसा एक खाली स्लेट माना है? So correct option is option number 4, John Locke. Option 4, John Locke is the right answer. Question number 11. Which of the following theory viewed cognitive development as a socially mediated process? Socio-cultural theory, social learning theory, psychosexual theory, sign learning theory. निम्नांकित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया सोशली मेडिएटेड प्रोसेस के रूप में देखा है? समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, सोशो कल्चरल थ्योरी, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। Question number 12. A 3-year-old boy says the sun is angry. It is an example of animism, egocentricism, criticism, institution. एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। यह एक उदाहरण है एनिमिज्म का, आत्म केंद्रण का, आलोचना का, अंतर्ज्ञान का। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, एनिमिज्म का। Question 13. Which of the following is not a type of intelligence as given by Gardner? Musical intelligence, spatial intelligence, interpersonal intelligence, analytical intelligence. निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है? संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता, स्पाशियल बुद्धिमत्ता, अंतवैयक्तिक बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। Teach program is mostly used to teach children with hearing impairment, gifted students, intellectual disability, autism. टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? श्रवण बाधित बालक, मेधावी बालक, बौद्धिक अक्षमता वाले बालक, ऑटिज्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ऑटिज्म। Which of the following studied moral development in children? Kohlberg, Piaget, both 1 and 2, none of the above. निम्नांकित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3,
both 1 and 2. Question number 16, providing salary to the children, providing salary to the teacher. At the end of every month, which schedule of reinforcement it reflects? फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल. शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्बलन के किस शेड्यूल की ओर इंगित करता है? स्थिर अनुपात, चर अनुपात, स्थिर अंतराल, चर अंतराल. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, फिक्स्ड इंटरवल, स्थिर अंतराल. Question number 17. Who purposed that all children have language acquisition device? Piaget, Chomsky, Vygotsky, Don Slobin. यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, Chomsky. Question 18. Who proposed advanced organizer model of teaching? Brunner, Pavlov, Ausubel, Piaget. शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया? सो आंसर इज ऑप्शन थर्ड, Ausubel. ऑप्शन थर्ड, Ausubel is the right answer. Multiple intelligence theory was proposed by Alfred Binet, Jean Piaget, Howard Gardner Jensen. बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा. हार्वर्ड गार्डनर इज द राइट आंसर. Question number 20. According to Freud, the age range of oral stage of psychosexual development is birth to 1 year, birth to 2 years, birth to 3 years, none of these. फ्रॉयड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, बर्थ टू 1 ईयर, जन्म से 1 वर्ष. Question number 21. The long-term memory for how to do things is known as procedural memory, episodic memory, immediate memory, sensory memory. दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करें से जुड़ी है कहलाती है प्रक्रियात्मक स्मृति, एपिसोडिक स्मृति, तात्कालिक स्मृति, संवेदी स्मृति. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, प्रोसीजरल मेमोरी, प्रक्रियात्मक स्मृति. The triarchic theory of successful intelligence was given by Spearman, Binet, Thorndike, Sternberg. सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, Sternberg. Question number 23. The law which is not a part of Gestalt views of learning is law of similarity, law of proximity, law of closure, law of use. वह नियम जो अधिगम के गेस्टॉल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है. समानता का नियम, निकटता का नियम, क्लोजर का नियम, उपयोग का नियम. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, लॉ ऑफ यूज, उपयोग का नियम. Question number 24. After occurrence of a desirable behavior, the teacher says very good to the child. She has used primary reinforcer, secondary reinforcer, negative reinforcement, none of the above. एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है. शिक्षक ने प्रयोग किया है प्राथमिक पुनर्बलक का, द्वितीयक पुनर्बलक का, नकारात्मक पुनर्बलक का, उपरोक्त में से कोई नहीं. Correct answer is option number 2, secondary reinforcer, द्वितीयक पुनर्बलक का. According to ecological system theory, which system includes values? Microsystem, macrosystem, mesosystem, mesosystem, exosystem.
परिस्थितिकीय परिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित हैं? सूक्ष्म तंत्र, वृहत तंत्र, मीजोतंत्र, एक्सोतंत्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, मैक्रो सिस्टम, वृहत तंत्र। मैक्रो सिस्टम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। Question number 26. Using our current schemes to interpret the external world is known as assimilation, accommodation, organization, none of these. वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है। तादात्मीकरण, आत्मसातीकरण, संगठन, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, assimilation, तादात्मीकरण। Assimilation is the right answer. Question number 27. Which of the following is not an example of acquired motive? Attitude, interest, curiosity, hunger. निम्नांकित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? अभिवृत्ति, रुचि, जिज्ञासा, भूख। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, हंगर, भूख। हंगर इज द राइट आंसर। Question number 28. Which of the following is an example of developmental disorder? Blindness, hearing impairment, intellectual disability, leprosy. निम्नांकित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता, बौद्धिक अक्षमता, कुष्ठ रोग। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। Question number 29. Which part of the brain supports grammatical processing and language production? Options are Broca's area, frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe. निम्नांकित में से कौन सा मस्तिष्कीय क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है? ब्रोका क्षेत्र, फ्रंटल खंड, पश्च मस्तिष्कीय खंड, ऑस्पिटल खंड। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ब्रोकास एरिया, ब्रोका क्षेत्र। ऑप्शन 1, ब्रोकास एरिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. Programmed learning is based on the work of. Programmed learning is based on the work of Skinner, Piaget, Pavlov, Bandura. प्रोग्राम्ड लर्निंग निम्नांकित में से किसके कार्य पर आधारित है? आंसर इज ऑप्शन 1, स्किनर। स्किनर is the right answer. Option 1. Question number 1. Which of the following is not a type of intelligence as proposed by Gardner? Musical intelligence, linguistic intelligence, logico-mathematical intelligence, creative intelligence. निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? संगीतीय बुद्धि, भाषीय बुद्धि, तार्किक एवं गणितीय बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, सृजनात्मक बुद्धि। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following statement is not correct? Number 1, intellectual disability and learning disability are not same. Number 2, a child with learning disability essentially has an IQ score less than 70. Number 3, intellectual disability occurs before age 18. Number 4, intellectual disability and learning disability both are developmental disability. निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर 1, बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं है। नंबर 2, अधिगम अक्षमता युक्त बालक की IQ निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। नंबर 3, बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है। नंबर 4, बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों ही विकासात्मक अक्षमताएं हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2,
A child with learning disability essentially has an IQ score less than 70. अधिगम अक्षमता युक्त बालक की IQ निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए. So right answer is option number 2. Question number 3. Which of the following system contains parents' workplace as per the Bronfenbrenner's ecological theory of development? Number 1 microsystem, number 2 macrosystem, number 3 mesosystem, number 4 exosystem. ब्रोन-फेन-ब्रेनर के विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्नांकित में से किस तंत्र में समाहित है? सूक्ष्म तंत्र, वृहद तंत्र, मेसोतंत्र, एक्सोतंत्र. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 एक्सोसिस्टम. एक्सोतंत्र और एक्सोसिस्टम इज द राइट आंसर. Question number 4. A mother gently strokes her infant's forehead each time immediate before breastfeeding. Soon she noticed that each time the baby's forehead is stroked, he makes active sucking movement. The baby's behavior best describes number 1 trial and error learning, classical conditioning, operant conditioning, social learning. एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियां देती है. जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है. बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम का, शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, सामाजिक अधिगम का. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का. क्लासिकल कंडीशनिंग इज द राइट आंसर. Question number 5. Which of the following is not true about zone of proximal development? Options are: it is related to Vygotsky's theory. It sets the upper limit on what the child is capable to learn. It is a range of tasks that a learner cannot perform without help of others but yet cannot perform independently. Option 4. It is the upper limit of a task that a learner can successfully perform independently. निम्नांकित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास का क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शंस आर: यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है, यह बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, यह उन कार्यों क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है, यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4. So it is the upper limit of a task that a learner can successfully perform independently. यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिससे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है. ऑप्शन 4 is the correct answer. Question number 6. Which of the following statement is not true? Classical conditioning deals with voluntary behaviors. Operant conditioning deals with voluntary behaviors. Classical conditioning deals with involuntary behaviors. In operant conditioning, consequences are important in framing an association. निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, शास्त्रीय अनुबंधन अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में परिणाम अनुबंधन का एक महत्वपूर्ण कारक है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद वॉलेंटरी बिहेवियर्स. शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 7. मीता हैज ओवरकम हर फियर ऑफ toy snakes. However, on one occasion her fear returned when she found toy snake on her bed. Such return of fear can be termed as stimulus generalization, stimulus discrimination, spontaneous recovery, extinction. मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला. भय के इस प्रकार वापसी को कहा जा सकता है उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, सत्य पुनर्प्राप्ति, विलोपन.
So correct option is option number third. Spontaneous recovery. Satyah Punarapti. Spontaneous recovery is the right answer. Option third. Question number 8. Which of the following is not a process of cognitive development as given by Piaget? Assimilation, accommodation, adaptation, shaping. निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है? सम्मिलन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन, शेपिंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, शेपिंग. Question number 9. Which of the following type is not a type of intelligence as given in Sternberg's tricycle theory of successful intelligence? Analytical intelligence, creative intelligence, musical intelligence, practical intelligence. स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखीय सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतीय बुद्धि. Question number 10. The example "you scratch my back and I will scratch yours" indicates which type of morality as given by Piaget? Beginning of morality of cooperation, pre-conventional morality, realism, not related to moral concern. यह कथन "तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा" निम्नांकित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है? जैसा कि पियाजे ने बताया, सहयोग की नैतिकता का आरंभ, पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता, वास्तववाद, नैतिकता से कोई संबंध नहीं है. So correct option is option number 1. Beginning of morality of cooperation. सहयोग की नैतिकता का आरंभ. Question number 11. Which of the following is not related to the classical conditioning experiment? Extinction, spontaneous recovery, shaping, stimulus, discrimination. निम्नांकित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? विलोपन, सत्यः पुनरावृत्ति, शेपिंग, उद्दीपक, विभेदन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, शेपिंग. Autism was first described by Samuel Kirk, Leo Kanner, B.F. Skinner, J.B. Watson. सबलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या दी है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, लियो कैनर. Question number 13. Out of the following alternative, which one is not comes under processes in socialization? Options are learning to behave in socially approved way, playing approved social roles, development of social attitudes, approval of egocentric behavior. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शंस आर सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निर्वाह करना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, अप्रूवल ऑफ इगोसेंट्रिक बिहेवियर, आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन. क्वेश्चन नंबर 14. द असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज. ऑप्शंस आर समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट. वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है उसे कहा जाता है. ऑप्शंस आर योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, औपचारिक आकलन, निदानात्मक आकलन. So correct answer is option number 2, formative assessment, रचनात्मक आकलन. Question number 15. In which of the following stage of cognitive development as described by Jean Piaget a child become capable of understanding conservation? Options are sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक सक्षम के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है. ऑप्शंस आर संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड,
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 16, according to Kohlberg, good boy, good girl orientation indicates options are pre-conventional morality, post-conventional morality, conventional morality, relative morality। कोलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है ऑप्शन आर पूर्व लौकिक नैतिकता का, पश्च लौकिक नैतिकता का, लौकिक नैतिकता का, नैतिकता का सापेक्षिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, कन्वेंशनल मोरालिटी, लौकिक नैतिकता का। क्वेश्चन नंबर 17, 4-year-old Binny started wetting her bed after her parents brings home a new baby. Which of the following type defense mechanism it is? Options are regression, suppression, rationalization, displacement। 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। यह निम्नांकित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? ऑप्शंस आर पश्चगमन, दमन, तादात्मीकरण, विस्थापन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 रिग्रेशन, पश्चगमन। Question number 18, which of the following is not an example of newborn reflexes? Options are eye blink, sucking, swimming, driving car। निम्नांकित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है? आंख झपकाना, चूसना, तैरना, कार चलाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ड्राइविंग कार, कार चलाना। Question number 19, the 3-stratum theory of intelligence was given by options are Piaget, Binet, Carroll, Cattell। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कैरोल के द्वारा। Question number 20, which of the following is not true about the Broca's area of brain? Options are it is located in the left frontal lobe, it supports grammatical processing, it is responsible for language production, it is responsible for comprehending word meaning। निम्नांकित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शंस आर यह मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल लोब में स्थित होता है, यह व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता करता है, यह भाषा उत्पादन का कार्य करता है, यह शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग वर्ड मीनिंग। यह शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ ए चाइल्ड इज शेयरिंग विद यू व्हाट ही डिड आफ्टर he got up in the morning, he is using his options are semantic memory, sensory register, procedural memory, episodic memory। यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह प्रयोग कर रहा है ऑप्शंस आर अर्थगत स्मृति का, संवेदी पंजीयन का, प्रक्रियात्मक स्मृति का, धारावाहिक स्मृति का। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, एपिसोडिक मेमोरी, धारावाहिक स्मृति का, धारावाहिक स्मृति का, एपिसोडिक मेमोरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is not true about dramatic play? Options are it is a form of active play, it is known as make believe play, it involve overt behavior, it is always reproductive। नाटकीय खेल के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस आर यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है, यह स्वांग रचना खेल के नाम से भी जाना जाता है, इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित है, यह हमेशा उत्पादक होता है, यह हमेशा उत्पादक होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, option number 4 is the right answer, it is always reproductive। Question number 23,
Presentation of an unpleasant stimulus to decrease the occurrence of a response is known as. Options are positive reinforcement, negative reinforcement, punishment, motivator. किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को कहते हैं. ऑप्शंस आर सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, दंड, प्रेरक. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, punishment, दंड. Punishment is the right answer. Question number 24. The statement personality is nothing but a set of learned responses best describes which of the following view about personality? Options are behavioristic view, structuralist view, functionalist view, cognitivist view. यह कथन की व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है. व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? ऑप्शंस आर व्यवहारवादी दृष्टिकोण की, संरचनावादी दृष्टिकोण की, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की, संज्ञानवादी दृष्टिकोण की. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, बिहेवियरिस्टिक व्यू, व्यवहारवादी दृष्टिकोण की. The seat belt buzzer of a car stops as soon as the driver put on the seat belt. It is an example of positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है. यह उदाहरण है सकारात्मक पुनर्बलन का, नकारात्मक पुनर्बलन का, सकारात्मक दंड का, नकारात्मक दंड का. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बलन का. Question number 26. Knowing how to ride a bicycle is an example of procedural knowledge, declarative knowledge, explicit knowledge. No option is correct. यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं एक उदाहरण है प्रक्रियात्मक ज्ञान का, घोषणात्मक ज्ञान का, स्पष्ट ज्ञान का. कोई विकल्प सही नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, प्रोसीजरल नॉलेज, प्रक्रियात्मक ज्ञान का. प्रोसीजरल नॉलेज इज द राइट आंसर. Question number 27. During the developmental period of fetus, head is well developed before his legs. This best describes which of the following tendency of development? Options are proximo-distal, cephalocaudal, uniformity, integration. विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है. यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या है? ऑप्शंस आर केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर, समरूपता, एकीकरण. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, सिफेलोकोडल, सिर से पैर की ओर. सिफेलोकोडल इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following is not true about children's play? Options are the number of play activities decrease with increasing age. Play becomes increasingly social with increasing age. The number of playmates increases with increasing age. Play become increasingly sex appropriate with increasing age. बच्चों के खेल के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस आर खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ कम होती जाती है. आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज्यादा सामाजिक होता जाता है. साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है. आयु बढ़ने के साथ खेल ज्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, द नंबर ऑफ प्लेमेट्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एज. साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है. क्वेश्चन नंबर 29. Dyscalculia is a type of. Options are locomotor disability, learning disability, intellectual disability, visual impairment. गणितीय गणना संबंधी अक्षमता एक प्रकार है. ऑप्शंस आर गामक अक्षमता का, अधिगम अक्षमता का, बौद्धिक अक्षमता का, दृष्टि बाधिता का. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग डिसएबिलिटी, अधिगम अक्षमता का. लर्निंग डिसएबिलिटी इज द राइट आंसर. Question number 30. Which of the following theory assumes that child development is not a continuous process? Options are cognitive development theory of Piaget, behaviorism, social learning theory, ecological system theory.
निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन आर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवाद, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, परिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आज हम स्टडी करेंगे HTET 2019 TGT मैथ्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड। ऑप्शंस हैं नंबर 1 एलिमेंट्री स्कूल एज, नंबर 2 स्मार्ट एज, नंबर 3 प्री गैंग एज, नंबर 4 गैंग एज। हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? ऑप्शंस हैं नंबर 1 प्रारंभिक विद्यालय आयु, नंबर 2 सफुर्ती अवस्था, नंबर 3 गिरोह से पहले आयु, नंबर 4 गिरोह आयु दल आयु। इसका सही आंसर है प्री गैंग एज। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड जो ऑप्शन है प्री गैंग एज, ये जो है सही आंसर है। Question number 2. What is the approximate IQ range of Mongolism mentally retarded children? Number 1 20 to 25, number 2 below 20, number 3 25 to 36, number 4 36 to 51. मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? 20 से 25, 20 से नीचे, 25 से 36, 36 से 51। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 36 to 51। थर्ड क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच डज नॉट कम अंडर प्रोसेसेस इन सोशलाइजेशन, learning to behave in socially approved ways, playing approved social roles, development of social attitudes, egocentric behavior। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? नंबर 1 सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, आत्म केंद्रित व्यवहार। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ जो ऑप्शन है वो जो है सही है। Egocentric behavior is the right answer. Next, question number 4 है, a type of intelligence which is mostly visible in dancers, athletes, surgeons, etc. is known as what? Bodily kinesthetic intelligence, spatial intelligence या स्पेटियल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, फोर्थ है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नृतक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है? शरीर गतिकी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, फोर्थ संगीत बुद्धि। तो इसका जो सही आंसर है वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि शरीर गतिकी बुद्धि। First, bodily kinesthetic intelligence is the right answer. Which of the following, question number 5 है, which of the following is not an element of emotional intelligence? Number 1 entrepreneurial competence, number 2 self motivation, number 3 empathy, number 4 handling relationships। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उद्यमी समर्थयता, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंधों को संचालित करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट एंटरप्रेन्योरल कंपिटेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए स्टूडेंट लर्न्स न्यू कंसेप्ट्स सच एज कार्निवोरस एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स नोन बाय हिम सच एज टाइगर, डॉग, लायन, लियोपर्ड,
leopard, etc. This type of learning is known as what? Number 1, combinational learning. Number 2, subordinate learning. Number 3, correlative learning. Number 4, superordinate learning. एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है। मांसाहारी पशु। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? सहयोगात्मक सीखना, अधीनस्थ सीखना, सहज संबंधात्मक सीखना, महाकोटि सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, महाकोटि सीखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, शिकागो टेस्ट, रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, शिकागो परीक्षण, रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आर्मी अल्फा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू ब्रोन, फ्रेन, ब्रीनर, law and customs are examples of which of the following ecological system of child? Microsystem, macrosystem, mesosystem, exosystem. ब्रोन, फ्रेन, ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? माइक्रोतंत्र, मैक्रोतंत्र, मेसोतंत्र या एक्सोतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है मैक्रो सिस्टम या मैक्रोतंत्र। According to Kohlberg, a stage of moral development during which individuals judge morality largely in terms of existing social norms or rules is known as which level of morality? Pre-conventional level of morality, conventional level of morality, post-conventional level of morality, unconventional level of morality. कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है? नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत स्तर, नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर, नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी, यानी कि नैतिकता का परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज नॉट द कॉज ऑफ डेलिंक्वेंसी? फिजिकल डिफेक्ट, पॉवर्टी, फेलियर, प्रॉपर होम इन्वायरमेंट। बाल अपराध का कारण नहीं है। शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रॉपर होम इन्वायरमेंट, उचित घरेलू वातावरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निशन? परसेप्शन, थिंकिंग, वॉकिंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्ष बोध, चिंतन, चलना, सप्रत्यय निर्धारण। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है वॉकिंग, यानी कि चलना। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12, out of the following which alternative shows characteristics of concrete operational stage given by Jean Piaget? Number 1, development of idea of cause-effect relationship and object permanence in children. Number 2, the children gains understanding of principles such as conservation, logical thought emerges. The child begins to represent the world symbolically, becomes capable of creating several forms of logical thought. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? नंबर 1, बच्चों में कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होना। नंबर 2, बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों का प्रकट होना। नंबर 3, बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है। नंबर 4, तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, यानी कि द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली। बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन? नीड्स, रोट मेमोरी, ड्राइव्स, इंसेंटिव्स। कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है? आवश्यकताएं, रटन स्मृति, अनंत नोर्द, प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है रोट मेमोरी, रटन स्मृति। क्वेश्चन 14 है डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट इज सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, रिमूविंग ऑफ हर्डल्स। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है शोधन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, बाधा, निराकरण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है रिमूविंग ऑफ हर्डल्स, यानी कि बाधा निराकरण। क्वेश्चन नंबर 15 है हु प्रपोज्ड सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेएस ब्रूनर, कोहलबर्ग। संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेएस ब्रूनर, कोहलबर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है लेव वाइगोत्स्की। Question number 16. Incorporation of new information into existing mental frameworks is known as what? Assimilation, accommodation, equilibration, organization. नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण, समाविष्टीकरण, संतुलिनीकरण, संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातकरण। क्वेश्चन नंबर 17 है फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ हिज प्यूपिल द टीचर शुड ट्राई टू serve the place of pupil's parents, develop love and affection for his pupil, take a lovable attitude towards the mischief of the pupil, show favors to few selected pupils. अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए, अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है डेवलप लव एंड अफेक्शन फॉर हिज प्यूपिल। वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ लेट चाइल्डहुड स्टेज? 2 to 6 years, 6 to 12 years, 4 to 7 years, 11 to 15 years. उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है 6 to 12 years, यानी कि 6 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 है हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ NDI मोटिवेशन फार्मूला? मैकडूगल, हिलगार्ड, ब्लेयर एवं जॉन्स, मैस्लो। NDI अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? मैकडूगल, हिलगार्ड, ब्लेयर एवं जॉन्स, मैस्लो। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का हिलगार्ड, सेकेंड ऑप्शन, यानी कि हिलगार्ड ये जो है NDI मोटिवेशन फार्मूला के प्रोपाउंडर थे। Which word was used by Thurston for intelligence? Primary mental abilities, universal mental abilities, neutral mental abilities, higher mental abilities. थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, सार्वभौमिक मानसिक क्षमताएं, तटस्थ मानसिक क्षमताएं, उच्च मानसिक क्षमताएं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। Question number 21. Out of the following, which activity area may not be considered as co-scholastic aspect of learner? Social skill, attitude and values, creative skill, curricular subjects. निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? सामाजिक कौशल, अभिवृत्ति एवं मूल्य, सृजनात्मक कौशल, पाठ्यचर्या, विषय। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है
क्यूरिकुलर सब्जेक्ट्स, पाठ्यचर्या विषय। Question number 22. The first psychological laboratory was established by whom? Galton, Cattell, Pestalozzi, Wundt. पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? Question number 22. Right answer is Wundt. Children's Question number 23. Children's understanding that their gender will not change even if they adopt the behavior, dress, or hairstyles of the other gender. This type of children's understanding is known as what? Gender identity, gender stability, gender consistency, gender stereotypes. बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? लिंग पहचान, लिंग स्थिरता, लिंग संगतता, लिंग रूढ़िबद्धता। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर इज जेंडर कंसिस्टेंसी, लिंग संगतता, लिंग संगतता, जेंडर कंसिस्टेंसी। Question number 24. Assessment of all-round development of the child's personality is known as which type of evaluation? Continuous evaluation, comprehensive evaluation, above 1 and 2 both, neither 1 nor 2 above. विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आंकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? सतत मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन, उपरोक्त 1 एवं 2 दोनों, उपरोक्त 1 एवं 2 दोनों नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। Question number 25. Which of the following is not a defense mechanism? Identification, compensation, rationalization, association. निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तादात्म्य, क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, सहचर्य। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है एसोसिएशन, सहचर्य। Question number 26. Out of sight, out of mind. Out of sight, out of mind is characteristic of which of the following developmental stage? Sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 27. A type of learning in which students try to learn by emerging new rule through given learning material is known as what? Number 1. rote learning, meaningful learning, reception learning, discovery learning. अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को क्या कहते हैं? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण करना, अन्वेषण सीखना। क्वेश्चन नंबर 27 राइट आंसर इज डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषण सीखना। Question number 28. Out of the following, which is fourth level of Taylor's level theory of creativity? Expressive creativity, productive creativity, innovative creativity, inventive creativity. निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? भाव बोधक सृजनात्मक, उत्पादक सृजनात्मक, अभिनव सृजनात्मक, आविष्कारी सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है इनोवेटिव क्रिएटिविटी, अभिनव सृजनात्मक। Question number 29. Out of the following, which is not the other name of adolescence? Transitional period of childhood and adulthood, problem age, stage of stress, strain and storm, smart age. निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था, स्फूर्ति अवस्था। क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर इज
स्मार्ट एज, स्फूर्ति अवस्था। Last question. Question number 30. Characteristic of good adjustment is tolerance, lack of confidence, emotional instability, irregular life habit. अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, संवेगात्मक अस्थिरता, अनियमित दिनचर्या। सो क्वेश्चन नंबर 30 आंसर इज टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता। Question number 1. Which of the following is not the main law of learning as described by Thorndike? Law of exercise, law of effect, law of readiness, law of generalization. निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सामान्यीकरण का नियम। करेक्ट आंसर इज Option 4, law of generalization. Law of generalization is the right answer. सामान्यीकरण का नियम। Question number 2. Who first introduced the word emotional intelligence? Options are Frederick and Kirk, Henry एवं पीटर, जॉन एवं क्रोनबैक, मेयर एवं स्लोवे। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? करेक्ट आंसर इज मेयर एंड स्लोवे, मेयर एवं स्लोवे। विच क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड एंड फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ हिज हर लर्निंग डेफिशिएंसी? ऑप्शंस आर psychoanalytic approach, behavioral approach, individualized instructional approach, multisensory approach. निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है? मनोविश्लेषणात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, व्यक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम, बहु इंद्रिय उपागम। So right answer is individualized instructional approach, व्यक्तिक अनुदेशनात्मक उपागम। Option 3 is the right answer, individualized instructional approach. Question number 4. Who first introduced the concept of latent learning? Kurt Lewin, E.L. Thorndike, Edward Chase Tolman, Pavlov। लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया? आंसर इज एडवर्ड चेस टोलमैन। एडवर्ड चेस टोलमैन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5. हु वाज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म? हु वाज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म? प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स, J.B. वॉटसन, क्लार्क हल, एडवर्ड टोलमैन। सो आंसर इज विलियम जेम्स। Question number 6. Which of the following is example of innate motive? Options are award, hunger, punishment, incentives. निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? पुरस्कार, भूख, दंड, प्रोत्साहन। सो आंसर इज hunger. Question number 7. In which stage of development the sexual changes that occur in the child's body starts to appear? Options are early childhood, later adolescence, adulthood, puberty. बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, पश्च किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वय संधि काल। आंसर इज प्यूबेरिटी, वय संधि काल। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? ऑप्शंस आर टाइप एस कंडीशनिंग, टाइप आर कंडीशनिंग, टाइप एस आर कंडीशनिंग, टाइप यू कंडीशनिंग। क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है?
एस प्रकार का अनुबंधन, आर प्रकार का अनुबंधन, एस आर प्रकार का अनुबंधन, यू प्रकार का अनुबंधन। सो राइट आंसर इज टाइप एस कंडीशनिंग, एस प्रकार का अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एज ग्रुप given by Erickson for the stage industry versus inferiority? Options are 6 to 11 years, 12 to 20 years, 3 to 6 years, 18 months to 3 years. परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? 6 से 11 वर्ष, 12 से 20 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 18 माह से 3 वर्ष। सो आंसर इज 6 to 11 years, 6 से 11 वर्ष। Question number 10. Out of the following, which is not correct principle of development? Options are principle of continuity, principle of individual difference, principle of uniformity of pattern, principle of proceeding from specific to general responses. निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? सातत्य का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। So answer is principle of proceeding from specific to general responses. Option number 4 is the right answer. विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। Question number 11. Which of the thoughts of school in psychology is also called as black box theory? Options are behaviorism, structuralism, functionalism, गेस्टल्टिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टोल्टवाद। सो आंसर इज बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। Question number 12. Which of the following is not the characteristic of good mental health? Options are ability to adjust, emotional maturity, self-confidence, intolerance. निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? समायोजन योग्यता, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, असहनशीलता। सो आंसर इज intolerance, असहनशीलता। Option 4 is the correct answer. Question 13. Scale 1 in cattle culture free intelligence test was prepared for whom? Options are for 8 to 12 years mental deficient person, for 4 to 8 years mental deficient person, for 12 to 15 years mental deficient person, for 2 to 4 years mental deficient person. कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी एक किसके लिए बनाई गई थी? 8 से 12 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए, 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए, 12 से 15 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए, 2 से 4 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 4 to 8 years मेंटल डेफिशिएंट पर्सन, 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following is the correct logical order for process of creativity? Number 1, insight, preparation, incubation, verification. Second is preparation, insight, incubation, verification. Third is preparation, incubation, insight, verification. Fourth is preparation, insight, verification, incubation. निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? नंबर 1, अंतर्दृष्टि, तैयारी, परिपाक, सत्यापन। नंबर 2, तैयारी, अंतर्दृष्टि, परिपाक, सत्यापन। नंबर 3, तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन। नंबर 4, तैयारी, अंतर्दृष्टि, सत्यापन, परिपाक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट, वेरिफिकेशन। तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 15. Which of the following terms is not related with the operant conditioning? Options are insight, reinforcement, spontaneous recovery, extinction. निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है? अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन, स्वतः
पुनर्लाभ, विलोपन. So correct answer is insight, अंतर्दृष्टि. Question number 16. Who introduces learning disable word very first for the children suffered from various learning problems? Number 1, Hayward. Number 2, Samuel Kirk. Number 3, Wayne Reaper. Number 4, Barak. वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सो करेक्ट आंसर इज सैमुअल किरक. ऑप्शन 2, सैमुअल किरक. Question number 17. Which of the following psychologist is not supporter of views about psychology as a science of soul? Options are Plato, Aristo, Descartes, Wundt. निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? सो आंसर इज ऑप्शन 4, Wundt. Question number 18. In which branch of psychology there is a scope of study of telepathy, rebirth, etc.? Options are physiological psychology, clinical psychology, parapsychology, developmental psychology. मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? दैहिक मनोविज्ञान, निदानिक मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान. So correct answer is parapsychology, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान. Question number 19. According to Jean Piaget, in which stage child is able to understand hypothesis and getting thinking ability on the basis of logical statement? Options are 0 to 2 years, second is 2 to 6 years, third is 6 to 11 years, fourth is 11 to 15 years. जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? सो आंसर इज ऑप्शन 4, 11 to 15 years, 11 से 15 वर्ष. Question number 20. Which of the following psychology studies about man's thinking, memory, language, perception, etc.? Options are humanist psychology, cognitive psychology, abnormal psychology, clinical psychology. निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? मानवतावादी मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, निदानिक मनोविज्ञान. So correct answer is option 2, cognitive psychology, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान. Question number 21. Which of the following is not the type of personality given by Kretschmer? Athletic, aesthetic, asthenic, and picnic. निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया है? सुडोलकाय, कलात्मक, लंबकाय, गोलाकाय. सो करेक्ट आंसर इज एस्थेटिक, कलात्मक. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द एज ग्रुप फॉर द मोरल डेवलपमेंट स्टेज? हेटेरोनॉमी, रेसिप्रोसिटी और reciprocity given by Jean Piaget. Options are 0 to 5 years, 13 to 18 years, 5 to 8 years, 11 to 13 years. जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायतः अन्योन्यता का आयु समूह क्या है? 0 से 5 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, 11 से 13 वर्ष. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 5 to 8 years, 5 से 8 वर्ष. Question number 23. Which of the following is not the characteristic of learning disabled children? Options are perceptual effectiveness, emotional instability, disorder of attention, impulsivity. निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, सांवेगिक अस्थिरता,
अव्यवस्थित, अवधान, आवेगिता. So correct answer is first, perceptual effectiveness, प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता. Question number 24. What is the IQ range of severe mental retarded children? What is the IQ range of severe mental retarded child? Options are 50 to 60, 36 to 51, 20 to 35, below 20. गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? ऑप्शंस आर 50 से 60, 36 से 51, 20 से 35, 20 से नीचे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड 20 to 35, 20 से 35. Question number 25. In which stage of development interest, friendship develops towards same sexual groups? Options are 12 to 14 years, 15 to 18 years, 10 to 12 years, 19 to 21 years. विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है? ऑप्शंस आर 12 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 19 से 21 वर्ष. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड 10 to 12 years, 10 से 12 वर्ष. क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following is not the type of realistic thinking? Options are convergent thinking, creative thinking, evaluative thinking, autistic thinking. निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? ऑप्शंस आर अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, सवलीन चिंतन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 ऑटिस्टिक थिंकिंग, सवलीन चिंतन. Question number 27. Out of the following, which psychologist was not supporter of humanist psychology? Options are Freud, Maslow, Rogers, Arthur, Combs. निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? सो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट फ्रॉयड. Question number 28. Who was the propounder of structuralism? Options are William James, William West, Wilhelm Wundt, Wilhelm Hunt और Hunt. Wilhelm Hunt. संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम वेस्ट, विलहेम वुंट, विलहेम हंट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड विलहेम वुंट. Wilhelm Wundt was the propounder of structuralism. Option third is the correct answer. Question number 29. Which of the following component is not related with the motivation cycle? Which of the following component is not related with the motivation cycle? Number 1 need, number 2 drive, number 3 emotion, number 4 incentive. निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस आर आवश्यकता, अनंत, नॉर्द, संवेग, प्रोत्साहन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड इमोशन, संवेग. क्वेश्चन नंबर 30. द इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट? ऑप्शंस आर रिपल्शन, पग्नेसिटी, थर्ड अपील, फोर्थ एस्केप. भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस आर प्रतिकर्षण, युयुत्सा, शरणागत, पलायन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ एस्केप, पलायन. Question number 1. Out of the following, which one is the wrong statement in context of characteristics and nature of guidance? Options are guidance is assisting the individual to adjust himself. Second, guidance is promotion of the growth of the individual in self-guidance. Option third, guidance is helping the individual himself through others' efforts only. Fourth, guidance is assisting an individual to find his place.
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है? नंबर 1, निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करना है। निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना है। निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करना है। So correct answer is option 3. Guidance is helping the individual himself through others' efforts only. निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। Question number 2. A type of thinking in which one's interpret sensation with experience is known as what? Options are reflexive thinking, perceptual thinking, creative thinking, critical thinking. एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है? परावर्तक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन. So answer is option 2, perceptual thinking. अवधारणात्मक चिंतन. अवधारणात्मक चिंतन, perceptual thinking is the right answer. Question number 3. Out of the following, which one of the statement is wrong in context of characteristics of sentiments? Options are: number 1, emotions are the basis of sentiments. Number 2, sentiments are innate. Number 3, sentiments get older with the passage of time and they may even change their state. Number 4, most of the animals do not have sentiments because of they do not have intellectual comprehension. निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? संवेग भावनाओं के आधार होते हैं। भावनाएं जन्मजात होती हैं। समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति भी बदल देती हैं। ज्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती हैं क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, सेंटिमेंट्स आर इननेट. So option 2 is the right answer. भावनाएं जन्मजात होती हैं. Sentiments are innate. This is the right answer. Question number 4. Which is the oldest method for the study of behavior? Number 1, experimental method, clinical method, psychophysical method, introspection method. व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि, नैदानिक विधि, मनोभौतिकी विधि, आत्मनिरीक्षण विधि. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि. क्वेश्चन 5. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेलिंक्वेंट्स? डैमेजिंग स्कूल प्रॉपर्टी, बुलिंग एंड मॉकरी, टॉर्चरिंग, एस्थेनिक, इनकॉन्स्टिट्यूशन. निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना, धमकी देना एवं उपहास करना, स्थाना, शरीर रचना में एस्थेनिक. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, एस्थेनिक इन कॉन्स्टिट्यूशन, शरीर रचना में एस्थेनिक. क्वेश्चन नंबर 6. Which one of the following is the correct logical order of observational learning process according learning theory of Bandura? Options are attention. Number 1, attentional, retentional, motivational, production. Number 2, attentional, motivational, retentional, production. Number 3, motivational, attentional, retentional, production. Number 4, attentional, retentional, production, motivational. निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है? नंबर 1, अवधारणात्मक, धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक उत्पादन. नंबर 2, अवधारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक, धारणात्मक उत्पादन. नंबर 3, अभिप्रेरणात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक उत्पादन. नंबर 4, अवधारणात्मक, धारणात्मक उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक. So correct option is question number 6. Right answer is option 4. Attentional, retentional, production, motivational. अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक.
Question number 7. Who stated that personality is the sum total of innate and acquired dispositions? Mortin Prince, Olport, Valentin Catel. यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, वैलेंटीन. Question number 8. Which one of the following is false statement in context of development? Options are development involves change, the development pattern is unpredictable, early development is more critical than later development, development is the product of maturation and learning. निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? विकास में परिवर्तन निहित होता है, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, आरंभिक विकास पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज्यादा संकटपूर्ण होते हैं, विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद होता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. द डेवलपमेंट पैटर्न इज अनप्रिडिक्टेबल. विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं. Question number 9. Girls surpass boys physically in infancy, later childhood, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस. लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में. इस क्वेश्चन के जो है दो आंसर्स जो हैं सही हैं. इसमें ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों जो हैं सही हैं. ऑप्शन नंबर 2 लेटर चाइल्डहुड और ऑप्शन नंबर 4 एडोलेसेंस, ये दोनों जो हैं सही हैं उत्तर बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में. Options 2 and option 4 are the correct answers. इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4. Question number 10. Out of the following, which one is the subject matter for study of Gestalt psychologist? Options are cognitive processes, consciousness, mental and behavioral processes, a-holes, modes and problems of existence. निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? ऑप्शंस आर संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, चेतना, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं, अस्तित्व के तरीके और समस्याएं. राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस आ होल्स. संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं. Question 11. What did Freud consider the paternal love of girls? Options are Oedipus complex, Electra complex, narcissism, feeling of dependence. लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रॉयड ने किससे संबोधित किया है? ओडिपस भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, सब प्रेम भावना, निर्भरता की भावना. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि. Question number 12. Sometimes the children of gifted parents are born with less intelligence than their parents or vice versa. Which law of heredity is called? Options are law of regression, law of selective traits, law of maternal and paternal lines, law of chance. कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा इसका ठीक उल्टा होता है. यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है? ऑप्शंस आर प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, मातृ व पितृ पक्षों का नियम, संयोग का नियम. सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी? ऑप्शंस आर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, एब्जॉर्ब्ड इन हिज ओन इंटेलेक्चुअल परस्यूट, supports theory with facts, propagates his views with insistence and vehemence. निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है? ऑप्शंस आर यथार्थवादी और व्यवहारिक, अपनी बौद्धिक खोज में लीन, तथ्यों के साथ सिद्धांत का समर्थन, अपने विचारों को आग्रह और दृढ़ता से प्रचारित करना. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर 2 absorbed in his own intellectual pursuit, अपनी बौद्धिक खोज में लीन. ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer, absorbed in his own intellectual pursuit.
Question number 14. Out of the following, which is correct sequence given by James Lane's theory of emotions? Options are situation, bodily disturbance, mental state. Number 2, situation, mental state, bodily expressions. Number 3, situation, bodily expressions, mental state. Number 4, situation, mental state, bodily disturbance. निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लोंजे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है? ऑप्शंस आर नंबर 1 परिस्थिति, शारीरिक अशांति, मानसिक स्थिति. नंबर 2 परिस्थिति मानसिक स्थिति, शारीरिक अभिव्यक्ति. नंबर 3 परिस्थिति, शारीरिक अभिव्यक्ति, मानसिक स्थिति. नंबर 4 परिस्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक अशांति. So answer of this question 14 is option 1. Situation, bodily disturbance, mental state. परिस्थिति, शारीरिक अशांति, मानसिक स्थिति. Question number 15. Out of the following, which one is not the characteristic of insight? Options are incidental, response in novel situation, habit, strength, response, spontaneity. निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस आर आकस्मिकता, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया, आदत बल, अनुक्रिया का सहजता से होना. सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन 3, हैबिट, स्ट्रेंथ, आदत बल. Question number 16. Out of the following, which one is not the stage of creativity prescribed by Gordon in his synectics technique? Options are detachment, involvement, finding something similar, deferment, concept formation. निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है? ऑप्शंस आर संलग्नता, अंतर्भाविता, समान वस्तु की खोज, स्थगन, संकल्पना, निर्माण. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, फाइंडिंग समथिंग सिमिलर, समान वस्तु की खोज. क्वेश्चन नंबर 17. आउट ऑफ द फॉलोइंग, विच वन कैरेक्टरिस्टिक नॉट suits to gifted children? Options are learn rapidly and easily, perform difficult mental tasks, knows about many things of which most of the students are unaware, much drill is required to retain what he/she has heard or read. निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? तेजी से और आसानी से सीखते हैं, कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, बहुत प्रकार की जानकारियां रखते हैं जिनके बारे में ज्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते हैं, जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उससे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. मच ड्रिल इज रिक्वायर्ड टू रिटेन व्हाट he/she हैज हर्ड और रीड. जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उससे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है. Question number 18. What is the age range of puberty stage? Options are 10 to 12 years, 6 to 12 years, 11 to 16 years, 8 to 10 years. व्यय संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है? ऑप्शंस आर 10 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 11 से 16 वर्ष, 8 से 10 वर्ष. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 11 to 16 years, 11 से 16 वर्ष. Question number 19. Out of the following, which one is not the type of performance test of intelligence? Number 1, Army Alpha test. Number 2, Cohos block design test, the cube construction test, the pass along test. निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? आर्मी अल्फा परीक्षण, कोहो का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, घन निर्माण रचना परीक्षण, पास एलोंग परीक्षण. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा परीक्षण. क्वेश्चन नंबर 20. According to Jean Piaget, between which age the child develops abstract reasoning? 6 to 8 years, 8 to 10 years, 7 to 9 years, 11 to 14 years. जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? 6 से 8 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, 11 से 14 वर्ष. आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 11 to 14 years, 11 से 14 वर्ष.
Question number 21. Who stated that an individual is intelligent in proportion as he is able to carry on abstract thinking? Options are Terman, Dearborn, बकिंगम, काल्विन। यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, टर्मन। टर्मन is the right answer. Question number 22. What is the process of releasing the hidden emotional suffocation and powers inside the children called emotional stability, emotional sensitivity, emotional catharsis, emotional competency? बच्चों के भीतर छुपे सावेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर सावेगिक स्थिरता, सावेगिक संवेदनशीलता, सावेगिक विरेचन, सावेगिक सामर्थ्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, इमोशनल कैथारिसिस, सावेगिक विरेचन। क्वेश्चन नंबर 23. Out of the following, which one activity is not suitable for satisfying the instinct's curiosity? Avoiding positions in the class or school, answering the questions of the students, problem solving, discussion in class. निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शंस आर कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देना, समस्या समाधान, कक्षा में विचार विमर्श। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, अवॉइडिंग पोजीशंस इन द क्लास और स्कूल, कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। Question number 24. How many cards prescribed in ROR sketch ink block test? Options are 12, 10, 30, 31. रोरशाह स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित हैं? 12, 10, 30, 31. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 10 और 10. ऑप्शन 2, 10 और 10 इज द राइट आंसर. Question number 25. Who is known as father of educational psychology? E.L. Thorndike, Pestalozzi, Herbert Frabel. शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सो करेक्ट आंसर इज E.L. Thorndike. E.L. Thorndike is known as father of educational psychology. Question number 26. Who invented sociometric technique? Options are J.E. Anderson, J.L. Moreno, E.B. Hurlock, G.S. Marmor. सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, J.L. Moreno. Question number 27. Which is the fourth stage of psycho-social development of an individual according to Erikson? Options are intimacy versus isolation, identity versus role confusion, industry versus inferiority, generativity versus stagnation. एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? प्रगाढ़ता बनाम अलगाव, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता. So correct answer is option number 3, industry versus inferiority. परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, industry versus inferiority is the right answer. Question number 28. According to Ross, which stage of development is known as pseudo maturity stage? Options are infancy, childhood, adolescence, adulthood. रोस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था. Question number 29. When a person tried to make her thoughts and action according to other whom he liked to follow, then this kind of activity called which type of defense mechanism? Options are identification, projection, rationalization, displacement. जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी
ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? ऑप्शंस आर तादात्मीकरण, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापना, विस्थापन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन, तादात्मीकरण. Question number 30. Which one of the following is not the common speech disorder of childhood? Options are depletion of energy, lisping, slurring, stuttering. निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? ऊर्जा की कमी, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना. So correct answer is option 1, depletion of energy, ऊर्जा की कमी. Option 1 is the correct answer, depletion of energy.